everyone. Today we will discuss the classification of elements. We already discussed how they are divided into the SP block and D block, so we will identify. Further, the classification of elements, we said it is divided into the S block element, B block element, D block element, or the F block elements. The elements are further classified as, or it can also be classified as the metals. It can also be classified as the metals, non-metals, and the metalloids, right? Okay, so first we will discuss the metals. Okay, so metals, if we say the physical properties, metals are those which are the solids at room temperature, which have high melting point and the boiling point. They are malleable and ductile. They are good conductor of the heat and electricity. What do you mean by the term malleable? Malleable means if we will beat them, okay, they can be drawn in the form of sheets, right? And ductile, they can be drawn in the form of wires, right? So this is the meaning of malleable and the ductile. One more, these are good conductor of heat and electricity, right? One more is that they are metals are sonorous. What do you mean by the sonorous? Sonorous means they produce ringing sound. They produce ringing sound. When the metal hit with the hard object, they will produce the ringing sound, right? Exceptions are also there in some metals, right? What are these exceptions? Okay, if we discuss about the exceptions, okay, exceptions in the metals, what are the exceptions? Now we already discussed they are solids at the room temperature, but mercury is liquid. First example is liquid at room temperature. Mercury is one of the metal which is the only metal which is liquid at the room temperature, right? One more limitation is also like that gallium and cesium. Gallium and cesium have very low melting point, right? They have very low melting point. Okay, whatever exceptions I'm giving you, these are given in your NCRT, so this is very important, students, right? First is the mercury is liquid at room temperature. Gallium and cesium, gallium symbol is Ja, cesium symbol is Cs. Okay, they have very low melting point. If they are metals, they should have high melting point and boiling point, but gallium and cesium are the two metals which have the low melting and boiling points. Third exception is that sodium and potassium can be, they are so soft they can be cut with a knife. Generally, usually the metals are hard, cut with a knife, but sodium and potassium are so soft it can be cut with a knife. Okay, lead and mercury are, they are poor conductors of heat. Lead and mercury are poor conductors of heat. I'm mentioning lead and mercury are poor conductors of heat. They will not conduct the heat, right? Conduction of heat will not be there. Hg, okay, it's non-sonorous. It is non-sonorous. Non-sonorous means we already said, see, sonorous. We already said that Hg is a liquid at the room temperature. Non-sonorous means when you hit this metal with a very hard object, it will not produce the sound. Next is the non-metals. Non-metals are those which are usually solids and gases at room temperature, sometimes liquids also, right? So these are those which are solids and gases at the room temperature. They have the non-metals have the properties just opposite to the metals only. They have low melting point and the boiling point. They are poor conductors of heat and electricity, and most of the non-metals are brittle. Brittle means if you apply the pressure they will break, right? They are not hard, right? If you apply the pressure they will break. Some exceptions are also there in the non-metals. Okay, what are these exceptions? First exception, boron and carbon, they both are non-metals. Okay, boron and carbon have high
melting point and boiling point. Okay, exception is there. Second, graphite. Graphite is the allotrope of the carbon. Graphite is non-metal, right? Graphite is a non-metal, but it is a good conductor of heat and electricity, right? But it is a good conductor of heat and electricity, right? Next, third, iodine. Iodine is also a non-metal, right? But iodine is lustrous. Okay, is lustrous. One property of metals is this: metals are shiny in nature, that is called as the lustrous. Okay, but iodine and non-metals are non-lustrous, right? These are non-lustrous, but iodine is one of the exceptions, that it is a non-metal. Iodine is a non-metal, but it is lustrous in nature. Fourth, diamond. Diamond, one more allotrope of the carbon, is the hardest substance. These are some of the exceptions of the metals and the non-metals. Now, one more point is there, that is the metalloids. Now, what are the metalloids? Metalloids are those elements or the substances which have properties in between, or which can exhibit the properties of both metals as well as non-metals, right? So they can exhibit the property of both metals as well as the non-metals. We have total 5 metalloids, that is the silicon, germanium, third arsenic, fourth antimony, and 5 is tellurium. In some other places 6 or 7 are also given. No, total we have, according to the NCRT, okay, remember this point, according to NCRT we have total 5 metalloids, that is silicon, germanium, arsenic As, antimony is Sb, and the tellurium is Te. Germanium is Ge, silicon is Si, right? So these are the classification of elements, like metals, non-metals, and the metalloid. Next is the nomenclature of the elements. Listen, now in total in our periodic table we already discussed that we have total 118 elements, and we discovered the names of all the 118 elements. But what is this, what is in this topic, that नेमिंग ऑफ एलिमेंट्स, दैट जब हमने नेमिंग शुरू करी एलिमेंट्स की, ओके, तो हमारे पास क्या है, एक है यूनियन, IUPAC, ओके, इसमें क्या होता है, दिस इज इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसमें डिफरेंट कंट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, इसमें डिफरेंट कंट्रीज़ के मेंबर्स होते हैं। तो क्या होता है, जब हम एलिमेंट्स की डिस्कवरी करते हैं तो क्या होता है कि अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग देशों से डिस्कवरी करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक एलिमेंट है हमारा 104, ओके, इसको अमेरिकन ने भी डिस्कवर किया और इसको सोवियट्स ने भी डिस्कवर किया। फाइन, जब अमेरिकन ने डिस्कवर किया तो इसका नाम दिया रदरफोर्डियम, ओके, इसका नाम दिया रदरफोर्डियम, राइट। बट जब इसको सोवियट्स ने डिस्कवर किया तो इसका नाम दिया KA कुर्चाटोवियम, ओके, कुर्चाटोवियम, ओके। सो इस तरह की कॉन्फ्लिक्ट्स, तो ये कह रहा है कि मेरा सही है, ये कह रहा है कि मैंने किया है, तो इस तरह की कॉन्फ्लिक्ट्स से बचने के लिए IUPAC ने क्या सोचा, जब तक हम इस चीज़ को वेरीफाई नहीं कर लेते कि किसने कौन सा डिस्कवर किया, तब तक हम इनका नाम ना देके हम इनका एक सिस्टमेटिक नॉमनक्लेचर से इनको डिफाइन करेंगे, ओके। जब हमारा कंफर्म हो जाएगा तब हम उसको कंट्री के बेस पे या साइंटिस्ट के बेस पे उनका हम नाम देंगे, ओके। तो उन्होंने एक नॉमनक्लेचर डिराइव किया। फॉर एग्जांपल 0 से 9 तक के डिजिट्स हैं, उसमें नेम दिए और उसकी एब्रिवेशन दिए। फॉर एग्जांपल अगर 0 आएगा तो उसे निल लिखेंगे, 1 आएगा तो UN लिखेंगे, 2 आएगा तो बाय, इसी तरह 9 आएगा तो ये लिखेंगे, और लास्ट में सफिक्स हम लगाएंगे IUM, सफिक्स हम लगाएंगे IUM इन द लास्ट, put suffix IUM, okay। So how we will write, for example, nomenclature above 100 elements, so how we will write, for example 101 we need to write it, so what is 1 in this, UN, right? What is 0 in this, nil, okay, what is again 1 in this, UN, and what we will put in the last, IUM. Next 102, what is 1 in this, again
UN. What is 0 in this? Nil, NIL. What is 2 in this? Bi. Okay, bi. Then last IUM. Now for example, if we need to write for 114, okay, what is 1 in this? UN. Again, what is 1 in this? UN. What is 4 in this? Quad. QUAD. Then the last IUM एंड सो ऑन. ऐसे हम इनका नॉमनक्लेचर करेंगे ऑफ द एलिमेंट्स ग्रेटर देन 114. ओके, सो सबसे पहले जो भी नया एलिमेंट आएगा उसको एक टेम्पररी नेम ये दिया जाएगा. उसके बाद हम IUPAC द्वारा जो अलग अलग साइंटिस्ट होंगे वो रेफर करेंगे कि इसको कौन सा नाम दिया जाना चाहिए. लेकिन अब तक 118 एलिमेंट्स हमारे पास आ चुके हैं और इन सारों के नाम हमें पता है, जो कि इट्स लाइक दैट. इफ 101 we'll talk, it is called as the Mendelevium, then Nobelium, then Laurentium, Rutherfordium, then up to it is organization is the 118th element. Right, now next topic is the atomic radius. Okay, now what is the meaning of the term atomic radius? Okay, radius is the, if we know a circle, right, suppose now we know that atom is like a circle. Okay, and this is the nucleus of the atom. We already said that electrons revolve around the nucleus in a certain fixed path, and these paths are called as the shells, right? Okay, now suppose we draw the 3D picture of this atom. Okay, so suppose if one electron is revolving, it is not that that electron हम यहीं find करेंगे या इस जगह find करेंगे या इस जगह find करेंगे. It is not necessary. ये क्या होता है, ये हमने इसकी 3D रिप्रेजेंटेशन की है. तो अगर ये इस शेल में एक इलेक्ट्रॉन सपोज ये है, ओके, सपोज ये है हमारा, है ना, तो हमारा अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ रिवॉल्व कर रहा है, यहीं कहीं, ठीक है, यहाँ कहीं रिवॉल्व कर रहा है, तो हमारा इलेक्ट्रॉन अगर इस शेल में पाया जाना है तो वो इधर भी पाया जा सकता है, इस जगह भी पाया जा सकता है और इस जगह भी मतलब हम ये क्या करते हैं, हम प्रोबेबिलिटी डिफाइन करते हैं कि इस जगह में इसकी मिलने की प्रोबेबिलिटी, इसके मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं. ओके, ये जो डिस्टेंस होता है वो ये डिफाइन करता है, वो ऑर्बिटल ये डिफाइन करता है कि यहाँ पे इसके पाए जाने की सबसे ज़्यादा जो चांसेस हैं वो यहाँ ज़्यादा है. अब एटॉमिक रेडियस क्या होता है? एटॉमिक रेडियस हम आम भाषा में, सिंपल भाषा में डिफाइन करते हैं, द डिस्टेंस ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल कंटेनिंग द इलेक्ट्रॉन. यही है द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस का सेंटर हो गया, टू द आउटर मोस्ट शेल कंटेनिंग द इलेक्ट्रॉन. सपोज ये आपका लास्ट शेल है जिसमें आपकी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इस चीज़ को ये एटॉमिक रेडियस बोल रहे हैं. पर इसमें भी क्या होता है बच्चे, एक डिसएडवांटेज है और एक इसकी लिमिटेशन है. कभी भी हम इंडिविजुअल एटम का वी कैन नॉट, नोट, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, नोट, ओके, we cannot find the atomic radius, we cannot find the atomic radius of individual atoms, we cannot find it. ओके, क्यों हम इसका इंडिविजुअल एटम्स का एटॉमिक रेडियस फाइंड नहीं कर सकते? किसी भी इंडिविजुअल एटम में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व कर रहा है तो वो क्या होता है, उसका कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है. वो इधर भी रिवॉल्व कर सकता है, वो थोड़ा इधर पास आके भी रिवॉल्व कर सकता है, वो थोड़ा इधर भी रिवॉल्व कर सकता है. उसकी डायरेक्शन एक फिक्स नहीं होती, हम प्रिसाइजली उस चीज़ को फाइंड आउट नहीं कर सकते. और सपोज उसके एनवायरनमेंट में कोई अलग एक एटम आके बैठ जाए, सपोज ये ए एटम आके बैठ गया, तो वो क्या कर रहा है, उसको अपनी तरफ खींच रहा है सपोज, तो वो क्या करेगा, डिस्टेंस बढ़ा देगा, राइट. कोई उसकी शार्प बाउंड्री नहीं है, इट डज नॉट हैव, राइट, मीन्स दिस इलेक्ट्रॉन डज नॉट हैव शार्प बाउंड्री. ओके, इट डज नॉट हैव द शार्प बाउंड्री, राइट. तो इसकी कोई शार्प बाउंड्री नहीं होती है, ठीक है. अगर कोई नेबरिंग एटम प्रेजेंट है तो इससे इसका इलेक्ट्रॉन क्या हो सकता है, डेविएट हो सकता है और उससे एटॉमिक रेडियस अफेक्ट हो सकता है. तो इसलिए हम एटॉमिक रेडियस किसी भी इंडिविजुअल एटम का ना फाइंड करते, एक ग्रुप ऑफ एटम्स का फाइंड आउट करेंगे, राइट. सो इस तरह की काफ़ी हमें दिक्कत आई, पर हमने क्या किया, विद द हेल्प ऑफ द एक्सरे और अदर मेथड और स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड, राइट, ओके,
एक्सरे की हेल्प से और स्पेक्ट्रोस्कोपी की हेल्प से। ओके, तो हमने क्या किया, एटॉमिक रेडियस डिफाइन किया, पर फिर भी हमें क्या था, कोई वैल्यू चाहिए थी कि हमें एटॉमिक रेडियस है हमारा, तो हमने एटॉमिक रेडिया को 3 पार्ट में डिवाइड किया। उनके 3 पार्ट हम सर्दी करते हैं, कोवेलेंट रेडियस, वंडर वॉल रेडियस एंड द मेटेलिक रेडियस। कोवेलेंट रेडियस हम नॉन मेटल्स में स्टडी करते हैं, कोवेलेंट रेडियस एंड द वंडर वॉल रेडियस ये हम नॉन मेटल्स में स्टडी करते हैं, एंड मेटेलिक रेडियस हम मेटल्स में स्टडी करते हैं, राइट। सो सबसे पहला है हमारा कोवेलेंट रेडियस। कोवेलेंट रेडियस क्या कहलाता है, इट इज़ डिफाइंड एज 1/2 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ, क्या है 1/2, ओके, मीन्स हमें हाफ करना है, ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ 2 कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स ऑफ द सेम एटम इन अ मॉलिक्यूल। हम क्या करेंगे इसमें, फॉर अ होमो डाई अटोमिक मॉलिक्यूल। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय होमो डायटोमिक, होमो मीन्स होता है सेम, राइट, होमो मीन्स होता है सेम एंड डाया मीन्स होता है टू। जो 2 एटम्स होंगे वो दोनों सेम होंगे, फॉर एग्जांपल H2, फॉर एग्जांपल Cl2, फॉर एग्जांपल F2 एक्सेट्रा। इसमें क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है, राइट। फॉर एग्जांपल जो हमारे ये न्यूक्लियस है, ये एक न्यूक्लियस है 1 क्लोरीन एटम का, ये एक एटम है 1 क्लोरीन एटम का, ये दूसरा एटम है एक क्लोरीन एटम का। ओके, सो अब हम इसका क्या करेंगे, तो क्या है द डिस्टेंस इस न्यूक्लियाई और इस न्यूक्लियाई के बीच के डिस्टेंस को, ये हमारा होता है d। ओके, ये हम क्या कहते हैं, ये हमारा बॉन्ड लेंथ है, ये हमारा बॉन्ड लेंथ है। द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ द 2 एटम इज कॉल्ड एज द बॉन्ड लेंथ। नाउ व्हाट इज द कोवेलेंट रेडियस, रेडियस क्या होता है, इन दोनों d के हाफ मीन्स द कोवेलेंट रेडियस क्या होता है, रेडियस हाफ ऑफ d इज कॉल्ड एज द कोवेलेंट रेडियस। नाउ फॉर एग्जांपल हम इसे कैसे बताएंगे, सपोज बॉन्ड डिस्टेंस, मैं आपको बड़ा शो करती हूँ, ये एक न्यूक्लियस है 1 क्लोरीन एटम का, ये एक न्यूक्लियस है 1 क्लोरीन एटम का। अब मैंने इसमें ये ओवरलैपिंग क्यों दिखाई है, क्योंकि जब हमारा कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्म होता है तो उसमें ओवरलैपिंग होती है एटॉमिक ऑर्बिटल्स की। फॉर एग्जांपल मैं H2 का आपको शो करती हूँ, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास क्या है 1 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे हाइड्रोजन के पास भी क्या है 1 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन क्या करेगा, एक और इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा ताकि वो इसके साथ डुप्लेट बना दे, ये हाइड्रोजन भी क्या करेगा 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा ताकि ये डुप्लेट बना दे, और ये आपस में H सिंगल बॉन्ड H फॉर्म करेंगे। तो इन्होंने क्या किया है, ओवरलैपिंग की है, ओके, एक दूसरे को ओवरलैप किया है। तो इसी तरह क्लोरीन भी ओवरलैप करता है। तो इन दोनों के जो बीच का डिस्टेंस होता है, इन दो न्यूक्लियाई के बीच का डिस्टेंस होता है, उसे हम कहते हैं डी, बॉन्ड लेंथ, राइट, इसे हम कहते हैं बॉन्ड लेंथ, राइट। और इन दोनों का हाफ, ये यहाँ से लेके यहाँ वाला पार्ट, ये डिस्टेंस होता है इसका आर। नाउ सपोज आपको एक एग्जांपल गिवन है आपकी NCERT में, राइट, एक है कि आपका Cl2 मॉलिक्यूल है, फाइन, उसका जो बॉन्ड डिस्टेंस है, आपको बॉन्ड डिस्टेंस आपको गिवन है, वो है आपको बॉन्ड डिस्टेंस गिवन है 198 पिकोमीटर। अब वो कह रहा है आप R निकालिए, आप इसकी कोवेलेंट रेडियस निकालिए। तो इसका क्या फॉर्मूला है, हाफ इनटू द बॉन्ड डिस्टेंस 198, दैट इज 99 पिकोमीटर, इसकी क्या हो जाएगी हमारी कोवेलेंट रेडियस हो जाएगी। ओके, सो व्हाट इज द कोवेलेंट रेडियस, इट इज डिफाइंड एज द 1/2 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द 2 covalently bonded atoms of the same atom in a molecule. This is for the homodiatomic molecule, right. नेक्स्ट आता है हमारा वंडरवॉल रेडियस। नाउ वंडरवॉल रेडियस क्या है, इट इज़ डिफाइंड एज वन हाफ डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ 2 आइडेंटिकल नॉन बॉन्डेड एटम्स। सो इस वर्ड पे आप ध्यान दीजिए, नॉन बॉन्डेड एटम्स। नॉन बॉन्डेड का क्या मतलब है, उसमें हमारे कोवेलेंट में 2 बॉन्डेड एटम्स थे, इसमें नॉन बॉन्डेड आइसोलेटेड एटम्स हैं। इसमें हम क्या कर सकते हैं, और एक और डेफिनेशन क्या है, 2 एडजेसेंट आइडेंटिकल एटम्स बिलोंगिंग टू 2 neighboring molecules of an atom in a solid state. सपोज हमारा ये क्या है, सपोज हमारा एक कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, राइट, ओके, ये इसका न्यूक्लियस है, ये एक कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हुआ, फाइन, और ये एक कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हुआ, एक और हमारा कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हुआ,
ये न्यूक्लियस, ये एक और, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस देखो, ये तो क्या हो गया हमारा, इसका जो हाफ हो गया, ये तो हो गया हमारा आर कोवेलेंट। सिमिलरली ये का हाफ, ये क्या हो गया हमारा आर कोवेलेंट, राइट। बट ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, बॉन्ड डिस्टेंस। क्या मेंशन किया, इट इज़ डिफाइंड एज 1/2 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन, ये भी एक न्यूक्लियाई है, ये न्यूक्लियाई एंड द न्यूक्लियाई ऑफ टू आइडेंटिकल, ये भी है सेम है, ये आइडेंटिकल नॉन बॉन्डेड एटम्स। दिस वन एंड दिस टू आर, दीज आर नॉन बॉन्डेड स्टेट, राइट, दे आर नॉट इन द बॉन्डिंग स्टेट। ओके, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम बोलते हैं डी, राइट। और इन दोनों का जो डी है, इसका जो हाफ होगा, इसको हम बोलेंगे आर वंडर वॉल रेडियाई, right? So it is defined as 1/2 of the distance between the nuclei of two identical non-bonded atoms, right? So ये हमारा क्या है, ये हाफ हमारा आर कोवेलेंट है, इसका हाफ हमारा क्या है, वंडरवॉल रेडियाई है, राइट। नेक्स्ट सबसे पहले हम कंपेयर करते हैं आर कोवेलेंट और वंडरवॉल। सी, हमने ये देखा कि ये तो हो गया हमारा इन दोनों के बीच का डिस्टेंस डी, ये हमारा हो गया कोवेलेंट, कोवेलेंट की बॉन्ड लेंथ हो गई हमारी, ठीक है। अब अगर हम वंडरवॉल की बॉन्ड लेंथ की बात करते हैं, राइट, वंडरवॉल की बॉन्ड लेंथ ये हमारी, ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, वंडरवॉल की बॉन्ड लेंथ। तो इन दोनों में से क्या है, इन दोनों में से कौन सी बड़ी है हमारी, जब इनकी हम अट्रैक्शंस, और हाँ, वंडरवॉल जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं, ये बहुत ही वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, ये बहुत ही क्या है, वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। और इन द नोबल गैसेस वी विल स्टडी, नोबल गैसेस, राइट, नोबल गैसेस में हम ये इंट्रैक्शंस हम पढ़ते हैं, राइट। सो अगर हम कोवेलेंट की बॉन्ड लेंथ की बात करें और इन वंडरवॉल रेडियाई की बात करें, राइट, सो जो कोवेलेंट बॉन्ड लेंथ है, इसमें जो एटम्स होते हैं, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो स्ट्रांगली हेल्ड होते हैं, वो स्ट्रांगली हेल्ड होते हैं आपस में, राइट, वो स्ट्रांगली बॉन्डेड होते हैं। जबकि ये जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या है, कि ये वीक फोर्स है, बहुत ही वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ओके। तो जो डिस्टेंस होगा, जो कोवेलेंट का लेंथ होगा, रेडियाई नहीं, जो लेंथ होगा, तो जो रेडियस होगा इनका, रेडियस, तो रेडियस किसका ज़्यादा बड़ा होगा, वंडरवॉल का या कोवेलेंट का, वंडरवॉल का। रेडियाई, इफ़ यू टॉक अबाउट रेडियाई, तो वंडरवॉल रेडियाई बड़ा होगा किससे, वंडरवॉल रेडियाई बड़ा होगा कोवेलेंट रेडियाई से, राइट। अगर ये इससे बड़ा है तो स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा, कोवेलेंट रेडियाई स्ट्रॉन्ग होगा वंडरवॉल रेडियाई से। क्यों, क्योंकि जो कोवेलेंट रेडियस होता है उसमें, जो कोवेलेंट रेडियस होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स आपके स्ट्रांगली हेल्ड है, अगर स्ट्रांगली हेल्ड है तो वो पास आएंगे, और वंडरवॉल में एक वीक होता है तो वो इतने पास नहीं होते हैं, तो इसलिए उसका रेडियस बड़ा होता है। लेकिन अगर ये पास है तो इसका रेडियाई क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा और छोटा होगा। Next is the metallic radius. Now what is metallic radius? It is defined as the 1/2 of the internuclear distance between two adjacent metal ions in the metallic lattice. सबसे पहले metallic radius से समझने के हम समझते हैं what is metallic bond. Metallic bond होता क्या है? Okay, a simple definition is that force of attraction between metal atoms in a metallic lattice, ओके, इसे हम बोलते हैं हमारा मेटेलिक बॉन्ड। ओके, क्या मतलब है कि हमारा एक मेटेलिक लेटिस है, इसको हम एक थ्योरी के थ्रू समझेंगे, दैट इज़ कॉल्ड एज द इलेक्ट्रॉन सी मॉडल और द इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी। ओके, अब क्या करते हैं, आप एक सपोज कीजिए, सपोज वी हैव अ ब्लॉक ऑफ मेटल, ओके, वी हैव अ ब्लॉक ऑफ मेटल, ओके, कोई ये हमारा एक मेटल का ब्लॉक है। अब हमारे पास एटम का ब्लॉक है, मेटल का ब्लॉक है, तो उसमें कोई एक एटम तो होगा नहीं मेटल का, हमारे पास बहुत सारे एटम होंगे। सपोज हमने कोई भी सोडियम, ये हमारे पास एटम्स है, फाइन, ये हमारे पास बहुत सारे एटम्स है,
किसी भी मेटल के, ये मेटल है। अब ये क्या होगा जब बाहर से इसको क्या होगा, एटमॉस्फेयर से, राइट, एटमॉस्फेयर से हम इसको कोई एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते हैं। और हमें ये पता है मेटल्स क्या करते हैं, एनर्जी, इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं। मेटल की टेंडेंसी क्या होती है, टू लूज द इलेक्ट्रॉन्स। जब वो एनर्जी गेन करते हैं, व्हेन इट गेन्स एनर्जी फ्रॉम एटमॉस्फेयर, जब ये एनर्जी गेन करेगा तो वो मेटल से क्या निकलेगा, हमारा एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन निकला है तो कितना चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि लूज करने पे पॉजिटिव चार्ज आता है। इन पॉजिटिव चार्ज कटायंस को हम क्या बोलते हैं, इसमें कर्नल्स बोलते हैं। और इस इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, मोबाइल इलेक्ट्रॉन बोलते हैं और वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, राइट। तो ऐसे ही क्या करता है, जो हमारा एक मेटल का पीस होता है या ब्लॉक होता है जो हमारा पड़ा है, अब कोई भी मेटल का पीस पड़ा है उसमें बहुत सारे मेटल एटम है और उन दोनों के ऊपर, और वो क्या है, वो बॉन्डेड है, मेटेलिक बॉन्ड से बॉन्डेड है, राइट। तो क्या करते हैं, वो एटमॉस्फेयर से एनर्जी लेते हैं, ठीक है। तो एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन्स उनका क्या करता है, बाहर निकलता है। अब इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलता है तो एक ऐसे उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो लाइक दैट वो क्या करेगा, हमारा फ्लो करेगा। जैसे सी मॉडल क्यों नाम दिया, एक सी की तरह हमारे इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, फ्लो करते हैं रैंडम डायरेक्शंस में, क्योंकि दे आर मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। इनकी कोई डायरेक्शन सेम नहीं होती, कोई इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, कोई यहाँ जा रहा है, कोई यहाँ जा रहा है, कोई यहाँ जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई ऊपर जा रहा है, कोई नीचे जा रहा है, राइट। तो क्या होता है, अब देखिए यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है हमारे पास, इधर भी पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है। तो इस पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन में, सॉरी, इस पॉजिटिव कटायन में और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन में एक क्या होगी, हमारी अट्रैक्टिव फोर्स होगी। पर इलेक्ट्रॉन में क्या होगी, हमारी रिपल्सिव फोर्स होगी। इधर भी इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव में हमारी अट्रैक्टिव फोर्स होगी। तो हमारी दो फोर्स अट्रैक्ट करेगी, बट इसमें क्या होता है, जो हमारी अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द कर्नल्स क्या हो जाएंगे, हमारे कटायंस, राइट, बिटवीन द कटायंस एंड इलेक्ट्रॉन्स, राइट, ओवरकम द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, राइट। सो एक अट्रैक्टिव फोर्स जो होती है वो उसके ओवरकम कर जाएगी, किसको कर जाएगी, रिपल्सिव फोर्स को कर जाएगी उन दोनों के बीच में। इसलिए क्या होता है, जो ये अट्रैक्शन होती है, दिस अट्रैक्शन बिटवीन kernels and mobile electrons or the valence electrons, is called as the metallic bond, and one more important thing, this valence electrons, ये क्या होते हैं, ये हमारे मोबाइल होते हैं। अगर मोबाइल होते हैं मीन्स ये मूविंग करते हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे, डीलोकलाइज्ड मतलब एक जगह पे आपके लोकलाइज नहीं रहते, एक जगह पे आपके स्टैटिक नहीं रहते। एक इलेक्ट्रॉन्स होता है हमारा कोर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको क्या करता है, पार्ट करता है, इसलिए बॉन्डिंग में तो वो डीलोकलाइज रहता है। कोर इलेक्ट्रॉन्स हमारे जो इनर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो मेटल के साथ अटैच रहते हैं, राइट, उन्हें हम कोर इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। ये क्या होते हैं, ये लोकलाइज्ड होते हैं, ये अपने प्लेस पे रहते हैं, ये अटैच रहते हैं हमारे मेटल एटम्स से, राइट, ओके। तो इसको हम क्या बोलते हैं, मेटेलिक बॉन्ड बोलते हैं, राइट, ओके। और जो ये आपका एक मेटल एटम है, ये दूसरा आपका मेटल एटम है। इन दोनों का न्यूक्लियाई का डिस्टेंस, राइट, इन दोनों के न्यूक्लियाई का डिस्टेंस का हाफ, इसके हाफ को हम क्या बोलेंगे, आपका आर मेटालिक, इसका हाफ, डिस्टेंस का हाफ, इसका हम क्या बोलेंगे, आपके आर मेटेलिक, राइट। और इसमें क्या होता है, अगर हम बात करें कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ रेडियाई, दैट इज़ वॉन डर वॉल, कोवेलेंट एंड द मेटेलिक। अब हमने क्या किया रेडियाई का, कि किसका बड़ा है किसका छोटा है। हमें पता है वेंडर वॉल का बड़ा है कोवेलेंट से, राइट, बट
अगर हम बात करें मेटेलिक और कोवेलेंट का, तो इन दोनों में से किसका बड़ा होगा? हमारा बड़ा होगा मेटेलिक का, क्योंकि जो मेटेलिक के अंदर होते हैं मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स एक जगह पे नहीं रहते, कॉन्टिन्यूस मूविंग होती हैं। तो ये एक तरह से कोवेलेंट के कंपैरिजन में एक वीक फोर्स है, वीक एज कंपेयर्ड टू कोवेलेंट रेडियस, राइट। ये वीक है एज कंपेयर टू द कोवेलेंट रेडियस। सो डिफरेंट टाइप ऑफ रेडियस हम कंपेयर करें, वैंडरवाल बड़ी होती है, देन मेटालिक होता है, देन हमारा कोवेलेंट होता है, राइट। और अगर हम स्ट्रॉन्ग की बात करें, विच वन इज स्ट्रॉन्ग, राइट, अगर हम बात करें विच वन इज स्ट्रॉन्ग, ओके, तो हमारा स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा? हमारा सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा कोवेलेंट, देन आपका स्ट्रॉन्ग होगा मेटालिक, देन आपका होगा वंडर वॉल, राइट। स्ट्रॉन्ग, राइट, कौन सा हमारा स्ट्रॉन्ग होगा? ओके।